So, hello everyone. Today we are going to see the lecture number 3 of your unit number 2, right? So, in this lecture, we will see the role of light and what is the photosynthetic apparatus which is used for the process of photosynthesis. Now, in the earlier lecture, we have seen that what is photosynthesis, the definition of photosynthesis, and the site of photosynthesis, that where this process is actually carried out. So let's go for our explanation of this lecture. So dear students, I want to ask you one question, that what is the ultimate source of energy for us? What is the ultimate source of energy for us? So no doubt we are going to take energy from our food, right? That is from mostly from the uh, vegetables, or if you are consuming any organism, or you can say any animal, then ultimately it is somehow dependent on the plants. So we all are getting the energy from the plants. Now, from where the plants are getting energy? They are getting energy from the sun, right? And in which form they are getting energy? In the form of radiations, or we can call it as light. So किस फॉर्म में एनर्जी मिल रही है? ये एनर्जी जो मिल रही है फॉर्म में मिल रही है लाइट के फॉर्म में, राइट? This energy is present in the form of light, right? So now the light energy is coming in the two forms. We know that there are two natures of light. One is the particle nature, and another is wave nature. So there are two ways by which light energy is coming, or the light is having two nature. One is the particle nature and another is wave nature. So as you can see here, there are different types of rays that are coming from the sunlight: gamma rays, x-rays, ultraviolet rays, infrared rays, and radio waves. Out of this complete light spectrum, x-rays, gamma rays are not coming to earth due to they are having high frequency, right? They are having high frequency, and that's why they are unable to come on earth. On the other hand, the ultraviolet rays that are coming are protected by the ozone layer, right? So this ozone layer is going to protect the ultraviolet rays, right? Now the third spectrum is the visible spectrum, and in the visible spectrum we are going to have the light from nanometer 400 nanometer to 700 nanometer. So this visible spectrum is actually also responsible for the photosynthesis. The visible spectrum of light is also responsible for the photosynthesis. So keep in mind that the radiations starting from 400 nanometer to 700 nanometers are utilized for the photosynthesis, right? So out of the total heat energy produced by sun, that is the energy emitted by the sun in the form of radiations, out of 100%
of its radiation, the earth receives only 40%. मतलब जितना सन एनर्जी रिलीज करता है उसके सिर्फ और सिर्फ 40% एनर्जी अर्थ तक आती है, राइट? एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रीचिंग द अर्थ, आउट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रीचिंग अर्थ, ओनली 1% ऑफ एनर्जी, मतलब अर्थ पर जो 100% एनर्जी पहुंच रही है, इस 40% को ही अब हम क्या कंसिडर करते हैं, 100%। तो अर्थ के ऊपर जो सन की एनर्जी की टोटल 40% आई, ठीक है, उसको ही हमने क्या कंसिडर किया कि अर्थ पर अब मान के चलिए जो अर्थ पर आने वाली एनर्जी है उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो कितनी है, 100%। इस 100% में से मात्र 1% एनर्जी किसके लिए यूज होती है, ओनली 1% एनर्जी इज यूज फॉर द फोटो, it is used for the photosynthesis. Okay, so out of this total amount of energy reaching on the earth, जो अर्थ पर 100% एनर्जी आ रही है उसमें से हम सिर्फ और सिर्फ कितनी एनर्जी को यूज कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, 1% एनर्जी, राइट? बाकी सारी 99% एनर्जी जो अर्थ पर आ रही है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो ये जो 100%, ये जो 1% एनर्जी है इसको कौन एब्सॉर्ब करता है, तो इट इज एब्सॉर्ब बाय द ग्रीन प्लांट्स, it is absorbed by the green plants, right? Now the out of total amount of energy, we know that out of 100% we are receiving only 1% for the photosynthesis. ये वो एनर्जी है, ये वो लाइट रेडिएशंस हैं जो आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर पड़ते हैं, राइट? जो रेडिएशंस प्लांट के लीव्स के ऊपर पड़ते हैं ये वो रेडिएशंस हैं, राइट? तो यहाँ पर जो एनर्जी पड़ रही है इन लीव्स के ऊपर, ग्रीन पार्ट के ऊपर, उससे किया जाएगा फोटोसिंथेसिस और उससे बनाए जाएंगे फिर कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द टोटल out of the total radiations, those radiations which can be used for photosynthesis are called as PAR, that is photosynthetically active radiations. Active radiations. और ये रेडिएशंस कौन से हैं, ये रेडिएशन स्टार्ट होते हैं 400 नैनोमीटर से, इनकी वेवलेंथ मतलब इनका जो लैम्बडा होता है ये स्टार्ट होता है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से, तो लगभग 700 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ रेंज करती है। और इन्हीं वेवलेंथ में से लगभग 400 नैनोमीटर से तो 500 के बीच में यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है मैक्सिमम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के द्वारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि लगभग 450 के आसपास, 450 नैनोमीटर के आसपास यहाँ पर जो एब्सॉर्प्शन हो रहा है ये कौन कर रहा है, इट इज एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। फिर यहाँ पर कुछ अमाउंट में जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये भी एब्सॉर्ब कर रहे हैं। फिर आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लगभग 500 से लेकर 600 नैनोमीटर के रेंज में यहाँ पर कोई एब्सॉर्प्शन नहीं होता, किसी भी पिगमेंट के द्वारा कोई भी एब्सॉर्प्शन नहीं होता। और फाइनली जब आप देखते हो कि आप 650 नैनोमीटर के आसपास जाते हो, 650 नैनोमीटर्स के आसपास जब जाते हो तो फिर से यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है और फिर से यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल आपका ए है, ये क्लोरोफिल ए मीन्स ये, और सॉरी ये क्लोरोफिल बी है एक्चुअली। सो ये जो क्लोरोफिल बी है, राइट, और ये क्लोरोफिल ए, तो ये क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्प्शन आता है यहाँ पर 660 के आसपास और 640 के आसपास यहाँ पर क्लोरोफिल ए का एब्सॉर्प्शन आता है। तो ये ध्यान रखें कि जो रेडिएशंस फोटोसिंथेसिस के लिए काम आते हैं उन्हें हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस बोलते हैं, और ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन रेंज करते हैं 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक। और
यहाँ पर ये जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, ये दो रेंज में मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन करते हैं। एक तो रेंज है आपकी 450 nm और दूसरी जो रेंज है वो है लगभग 650 nm। तो इन दो रेंजेस में यहाँ पर एब्सॉर्प्शन होता है बाय द क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड इन सम अमाउंट बाय द कैरोटीनॉइड्स। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ लाइट। ये सारा रोल ऑफ लाइट है कि हम जो भी कोई एनर्जी यूज कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे भी कोई भी प्लांट हो, 99.99% लोग, ये सारे लोग सन की ही एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो सन की एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में अर्थ पर आती है, फिर उससे प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं जो कि केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और फिर उन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स, उन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं कार्निवोर्स, राइट, और फिर इन दोनों को कंज्यूम करते हैं और ओमनीवोर्स। तो फाइनली जो प्लांट की एनर्जी है वो फिर हर्बीवोर के पास जाएगी, वो कार्निवोर के पास जाएगी, अल्टीमेटली वो ओमनीवोर के पास आना है। सो अल्टीमेटली ह्यूमंस, ऑल द एनिमल्स and everyone is dependent on which source? They are dependent on the sunlight for their survival, right? So that's why here I have written that, आप यहाँ पर देख सकते हो कि the ultimate source of energy is your sun. Okay, now so to capture the light, we need some molecules, right? We need some molecules to capture light. To capture light. We need some molecules to capture light. लाइट को कैप्चर करने के लिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स लगते हैं, और उसी में का एक मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल। तो जो मेजर मॉलिक्यूल है जो लाइट एब्सॉर्ब करता है वो कौन सा है? क्लोरोफिल. क्लोरोफिल इज द मॉलिक्यूल दैट मेनली एब्सॉर्ब्स लाइट. ओके, सो इट इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. It is the primary photosynthetic pigment. It is the primary photosynthetic pigment chlorophyll. तो ये जो क्लोरोफिल है इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि इसके अंदर ये जो रिंग स्ट्रक्चर्स है, ये रिंग स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर. तो जो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो रिंग्स होती है, राइट, इनको हम कहते हैं पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर. आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पर. सो देयर आर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन दिस क्लोरोफिल स्ट्रक्चर, राइट. अब ये जो क्लोरोफिल है इसके सेंटर में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसके सेंटर में है Mg डाइपोजिटिव. मतलब क्लोरोफिल को बनने के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीशियम आयन. What is the basic requirement for the chlorophyll is, for the formation of chlorophyll is the porphyrin structure and the Mg dipositive ion. इसीलिए Mg dipositive की जब डिफिशियंसी होती है प्लांट को, तब वो क्लोरोफिल प्रॉपरली नहीं बना पाता, और फिर उसके अंदर उसके जो डिफिशियंसी है वो क्लियरली विजिबल होती है क्योंकि क्लोरोफिल ठीक से नहीं बनता, राइट. सो ये पोरफायरिन रिंग स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक लॉन्ग टेल होती है जिसको हम हाइड्रोकार्बन टेल बोलते हैं, राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेल होती है, दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन टेल. सो ये आर चेन बहुत बड़ी होती है. यहाँ पर आप आर चेन का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये आर चेन का स्ट्रक्चर है यहाँ पर, राइट. सो ये आर चेन काफ़ी बड़ी होती है यहाँ पर, जो कि किसको अटैच्ड होती है? ये क्लोरोफिल को अटैच्ड होती है, राइट. और क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो आर है, इस आर के जगह पर अगर CH3 होगा तो क्लोरोफिल ए होगा, और अगर यहाँ पर CHO होगा तो क्लोरोफिल बी होगा. इज इट ओके? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल की कुछ टाइप्स हैं जो कि है मेनली क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी
क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ये जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है ये यूनिवर्सल पिगमेंट्स हैं। मीन्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स में ये प्रेजेंट है, और ग्रीन प्लांट्स में तो यही होते हैं मेनली। जो ग्रीन प्लांट है उसके अंदर मेनली क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही होता है। फिर क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी जो है, ये क्लोरोफिल सी और डी कुछ स्पेशल प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं। फियोफाइसी एक साइनोबैक्टीरिया है, एल्गी बेसिकली, तो उन मेंबर्स में क्लोरोफिल सी होता है, और यहाँ पर क्लोरोफिल डी जो होता है ये रूडोफाइसी में होता है। तो ये समझना है हमें कि अगर हमें लाइट को एब्सॉर्ब करना है, लाइट को रिसीव करना है, तो हमें कोई मॉलिक्यूल चाहिए जो लाइट को रिसीव कर सकते हैं, और वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं, वो प्रिंसिपल मॉलिक्यूल कौन से हैं, क्लोरोफिल, राइट। सो इनको हम फोटो रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं। यू कैन कॉल क्लोरोफिल एज फोटो रिसेप्टर। और क्यों कह सकते हैं हम इसे फोटो रिसेप्टर? बिकॉज इट कैप्चर्स लाइट। लाइट को रिसीव करने वाला जो है उसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर। ठीक है, तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपको। आपके लेवल पर क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर ये ध्यान में रखिए कि क्लोरोफिल को बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, Mg डाइपॉजिटिव आयंस की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल, राइट। नाउ देयर आर सम एक्सेसरी पिगमेंट्स। कुछ एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, हमने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं, देयर आर सम एक्सेसरी पिगमेंट्स। और ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ये दो पिगमेंट्स हैं, वन इज कैरोटिनॉइड्स एंड अदर इज फाइकोबिलेंस। तो ये एक्सेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, ये दे एब्सॉर्ब लाइट एंड दे ट्रांसफर एनर्जी टू द टू क्लोरोफिल। ये किसको एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, क्लोरोफिल को। तो ये समझे कि एसेसरी पिगमेंट्स जो है, क्लोरोफिल तो लाइट को एब्सॉर्ब करता ही है, पर लाइट का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए जो जितना अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब किया जाता है उसको इंक्रीज करने के लिए एसेसरी पिगमेंट हेल्प करते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट क्या करते हैं, ये लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, और फाइनली जो एनर्जी है वो किसको दी जाती है, क्लोरोफिल को, राइट। और इनकी खासियत ये होती है कि दे जनरली एब्सॉर्ब लाइट, दे एब्सॉर्ब लाइट in the region where chlorophyll doesn't absorb। क्या कहा मैंने कि ये उस रीजन में एब्सॉर्प्शन करते हैं जहां पर कौन एब्सॉर्प्शन नहीं करता, जहां पर क्लोरोफिल एब्सॉर्प्शन नहीं करता, उस रीजन में एसेसरी पिगमेंट्स एब्सॉर्ब करते हैं। अब एसेसरी पिगमेंट्स के दो टाइप्स हैं, एक तो है कैरोटिनॉइड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरे हैं बिलिन पिगमेंट्स, या इन्हीं को हम कहते हैं फाइकोबिलेंस। तो जो प्लांट के बिलिन पिगमेंट्स हैं उसे हम फाइकोबिलेंस कहते हैं। अब ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं इनका आप स्ट्रक्चर देख सकते हो कि यहाँ पर ये लॉन्ग आइसोप्रेन यूनिट की चेन है एक, एंड यहाँ पर भी आपको रेगुलर डबल बॉन्ड देखने मिलेंगे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड देखने मिलेंगे स्ट्रक्चर में। सो ये जो कैरोटीन्स होते हैं दे आर C40 टर्पीन्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, दे आर C40 टर्पीन्स। तो ये टर्पीन क्लास के मेंबर्स हैं कैरोटिनॉइड्स, और ये जो कैरोटिनॉइड्स हैं दे मेनली एब्सॉर्ब ब्लू कलर्ड लाइट। कौन से लाइट का एब्सॉर्प्शन करते हैं ये,
ये ब्लू कलर के लाइट का एब्सॉर्प्शन करते हैं कैरोटीनॉइड्स। तो ये लोग सपोर्ट करेंगे प्लांट्स को या क्लोरोफिल को फॉर द बेटर एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये लाइट को एब्सॉर्ब करेंगे और ये फाइनली किसको दे देंगे, क्लोरोफिल को। दूसरी चीज़ कि ये जो कैरोटीन्स होते हैं, ये कैरोटीन्स दो और काम करते हैं। ये एक तो फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं जो आपको बताया है, एंड द सेकंड फंक्शन परफॉर्म बाय दिस इज फोटो प्रोटेक्शन। तो जो दूसरा काम करते हैं ये, वो करते हैं फोटो प्रोटेक्शन। मतलब जब बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एक्सट्रीम लाइट इंटेंसिटी होती है, तब ये प्लांट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं। इन एक्सट्रीम लाइट इंटेंसिटी दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम प्लांट ऑर्गेनेल्स फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो कैरोटीन्स के दो काम हैं, एक तो है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है फोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हमने अभी तक देखे हैं कि एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और फाइनली किसको दे देते हैं, क्लोरोफिल को। ये उस रीजन में एब्सॉर्ब करते हैं जहां पर कौन एब्सॉर्ब नहीं करता, क्लोरोफिल एब्सॉर्ब नहीं करता, राइट। ये C40 टर्पिनॉइड्स हैं, मतलब ये 40 कार्बन के, इनके अंदर टोटल 40 कार्बन्स होते हैं और ये 40 कार्बन के टर्पिन क्लास के कंपाउंड्स हैं, राइट। ये मेनली ब्लू लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और ये दो जगह पर काम करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस में और दूसरा फोटो प्रोटेक्शन में। क्लियर? They work in two ways, in the photosynthesis and in the photoprotection, right? So you can take screenshot of this image. जितना हमने लिखा है उसका आप screenshot ले सकते हो, okay? So I am going to wipe it off. Now, after this carotenoids, they are having, or they give plant red color. ये plant को red, ऑरेंज ये कलर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं। जो इवन जो लीव्स होते हैं वो कई बार रेड कलर के लीव्स होते हैं, ऑरेंज कलर के लीव्स होते हैं। सो ये जो दोनों भी चीज़ें होती है किसकी वजह से होती है, इट इज़ ड्यू टू द कैरोटीनॉइड्स। सो कैरोटीनॉइड्स दे गिव कैरेक्टरिस्टिक कलरेशन टू द प्लांट फ्रूट्स एंड लीव्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप्स हैं, एक तो टाइप है इसका ज़ांथोफिल और दूसरे हैं कैरोटीन्स। ध्यान दें कि कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप हैं, एक है ज़ांथोफिल और दूसरे हैं कैरोटीन। ज़ांथोफिल जो है, ये ज़ांथोफिल के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट किसके अंदर, ज़ांथोफिल वो कैरोटीनॉइड्स हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और कैरोटीन्स वो कैरोटीनॉइड्स हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, ऑक्सीजन इज एब्सेंट। तो ये ध्यान रखें कि कैरोटीनॉइड्स के दो टाइप हैं, एक तो है ज़ांथोफिल्स और दूसरे हैं कैरोटीन्स। ज़ांथोफिल्स दे कंटेन ऑक्सीजन एंड कैरोटीन्स दे डजंट कंटेन ऑक्सीजन। आपने एक नाम सुना होगा जिसका स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिया गया है, बीटा कैरोटीन। और ये जो बीटा कैरोटीन है ये होता कहाँ पर है, इट इज प्रेजेंट इन द कैरेट्स। जो कैरेट्स होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, राइट। ज़ांथोफिल्स की बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, जियाज़ैंथिन है, नियोज़ैंथिन है, वायोलाज़ैंथिन है। तो ये जो ज़ांथोफिल की टाइप है ये मेनली फोटो प्रोटेक्शन में काम करते हैं। तो जो ज़ांथोफिल्स हैं दे आल्सो वर्क इन द फोटो प्रोटेक्शन, ओके। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ पिगमेंट्स आर कॉल्ड एज फाइकोबिलेंस, right? So they are light capturing pigments. They are again light capturing pigments in plants. They are light capturing pigments in the plants, right? They are present in two things. One is cyanobacteria, और ये प्लांट्स में भी होता है,
तो ये ध्यान रखिए कि ये साइनोबैक्टीरिया में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। These phycobilins, they are water soluble. ये ध्यान रखें कि जो कैरोटीन्स हैं ये फैट सोल्यूबल है। The carotenes are fat soluble while the phycobilins are water soluble. And these phycobilins, ये जो phycobilins होते हैं, ये सपोज आपका phycobilin है, तो ये किसी एक प्रोटीन को अटैच होता है। तो जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर ये जो फाइकोबिलिन्स है दे आर अटैच्ड टू सम प्रोटीन्स एंड दे आर कॉल्ड एज फाइकोबिलिन प्रोटीन्स, राइट। सो जो फाइकोबिलिन्स हैं दे आर अटैच्ड टू द प्रोटीन एंड टुगेदर दे फॉर्म फाइकोबिली प्रोटीन्स। So phycobilins, they are attached to a protein and they are called as phycobilin protein. Okay. So ये किस कलर को एब्सॉर्ब करते हैं? ये मेनली रेड कलर को, ऑरेंज को, राइट, और ग्रीन कलर को भी कुछ एक्सटेंट में एब्सॉर्ब करते हैं। They absorb light. In which range? They absorb light in रेड कलर, ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर। तो एक रेड कलर का भी लाइट एब्सॉर्ब करेंगे, ऑरेंज कलर का भी लाइट एब्सॉर्ब करेंगे और ग्रीन कलर का भी लाइट एब्सॉर्ब करेंगे ना। तो अब हमने बेसिकली देख लिया है कि जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है वो कौन से होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो लाइट एब्सॉर्ब किया जाता है उस लाइट का फेट क्या है। व्हाट इज द फेट ऑफ लाइट दैट हैज बीन एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। सो suppose this is your chlorophyll and that is going to absorb the light radiation. ये chlorophyll है जिसने कि क्या absorb किया है? light radiation. So here you can see absorption of photon promotes delocalized electron to the excited state. इन्होंने क्या किया chlorophyll ने कि जो light आया उसकी वजह से इन्होंने जो एक फोटोन आया लाइट के अंदर उसकी वजह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर दिया। जो डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन था उसको कहाँ पर भेज दिया? एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया, मतलब हायर ऑर्बिटल में भेज दिया। और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हम ये लिखते हैं कि क्लोरोफिल यहाँ पर एक्साइट हो चुका है। दिस इज द एक्साइटेड क्लोरोफिल, राइट। फिर ये जो क्लोरोफिल एक्साइट हुआ है, अब ये इस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को या इस एनर्जी को किस तरीके से रिलीज करेगा। तो 4 फॉर्म हो सकते हैं जिससे एनर्जी रिलीज हो सकती है। पहला है हीट के फॉर्म में, कि क्लोरोफिल क्या करे कि उसने जो एनर्जी एब्सॉर्ब की है फोटोन की, उस एनर्जी को रिलीज कर दे। कौन से फॉर्म में? हीट के फॉर्म में, और वापस कहाँ पर आ जाए? अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाए, राइट। तो ये एक काम किया जा सकता है कि इसने क्लोरोफिल ने जो एक्साइट हुआ उसने हीट को कैप्चर किया, उसने जो फोटोन कैप्चर किया था उसकी एनर्जी को हीट के फॉर्म में रिलीज कर दे। जो दूसरी चीज़ है कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्या कर सकता है कि ये क्लोरोफिल फ्लोरोसेंस, मतलब लाइट को इमिट कर सकता है। ये जो क्लोरोफिल है ये एनर्जी की दूसरी फॉर्म इमिट कर सकता है, और वो कौन सी है? लाइट की एनर्जी को इमिट कर सकता है, राइट। तीसरा जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, तो 2 फॉर्म देख लिया हमने। एक क्लोरोफिल जो है ये हीट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर सकता है, दूसरा ये फ्लोरोसेंस के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर सकता है, राइट। पर अगर ये दोनों वे से अगर इस एनर्जी को छोड़ेगा तो ये वेस्ट हो जाएगी एनर्जी। दिस एनर्जी विल बी वेस्टेड। ये जो एनर्जी है ये वेस्ट हो जाएगी क्योंकि हीट भी कोई काम नहीं आएगी और ये जो फ्लोरेसेंस है उससे भी आपका कोई एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। नाउ द थर्ड वे इज द एक्साइटेशन ट्रांसफर। यहाँ से जो एनर्जी जाती है वो जाती है फोटोसिंथेसिस में। तो जब क्लोरोफिल किसी फोटोन को एब्सॉर्ब करेगा, वो फोटोन को एब्सॉर्ब करने के बाद में बेसिकली एक्साइट होगा, और जब वो किसी एक सबस्ट्रेट को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सबस्ट्रेट ले लेगा और ये सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये सबस्ट्रेट क्या होता है ये आगे की बात है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, पर ये सबस्ट्रेट एक्टिवेट हो जाएगा, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया और बाद में फिर यहाँ से फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो चालू होंगी।
सो फाइनली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो ट्रांसफर की जाती है। एक्साइटेशन ट्रांसफर में एनर्जी किसको दी जाती है? इन द excitation transfer the energy is given to the another molecule, right? Now the next thing that can be done is the photo oxidation. यहाँ पर क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि अगर यहाँ पर एनर्जी इस फोटोसिंथेसिस में नहीं गई तो वो एनर्जी फिर से एक फॉर्म में वेस्ट होती है, और वो है फोटो ऑक्सीडेशन। और ये जो एनर्जी वेस्ट हो रही है ये तो जो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन है इसको डैमेज भी करती है, डैमेजेस फोटोसिंथेटिक apparatus। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दिस एनर्जी इज गोइंग टू डैमेज द फोटोसिंथेटिक apparatus। इज इट ओके? सो 4 फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो सकती है, एक तो हीट के फॉर्म में, दूसरा लाइट के फॉर्म में, तीसरा एक्साइटेशन ट्रांसफर से वो किसी को एनर्जी दे सकता है, किसी सबस्ट्रेट को जो आगे एनर्जी किसी को देगा और फिर फोटोसिंथेसिस होगा, और जो चौथा वे है जहां से एनर्जी जा सकती है दैट इज द फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से किसी ऑक्सीडाइज्ड मॉलिक्यूल का रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल में कन्वर्शन होगा, राइट? और फिर यहाँ पर फाइनली ये जो एनर्जी रिलीज, यहाँ पर जो ये रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल रहेगा ये किसी फोटोसिंथेटिक apparatus को डैमेज करेगा, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का जो अमाउंट है, जो रेट है वो कम हो जाएगा। ओके, तो हमारे जो काम की एनर्जी है वो कहाँ से निकल रही है? ये जो एनर्जी है वो कहाँ से निकल रही है? दिस एनर्जी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द एक्साइटेशन ट्रांसफर। तो हुआ क्या कि क्लोरोफिल ने फोटोन लिए, क्लोरोफिल एक्साइट हुआ, उसने फिर किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, और इलेक्ट्रॉन देने के बाद में वो फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया, और यहाँ पर अब फोटोसिंथेसिस शुरू हो गया। नाउ यू हैव heard this word many number of times, the light harvesting complex, that is called as LHC। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को ही दूसरा नाम दिया जाता है LH&C, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते क्या है? द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स आर बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज पिगमेंट, ये 2 लोगों का कॉम्बिनेशन है, एक तो पिगमेंट है और दूसरे है प्रोटीन। सो दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज अ पिगमेंट एंड अनदर इज प्रोटीन। सो यू कैन से लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस आर बेसिकली मेड अप ऑफ 2 थिंग्स, वन इज पिगमेंट एंड प्रोटीन। पिगमेंट कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, राइट, ज़ांथोफिल, कैरोटीन, ये सारे हो गए पिगमेंट्स। और इसके साथ में जब प्रोटीन कंबाइन होते हैं तो हम इसको बोलते हैं दे आर कॉम्प्लेक्स ऑफ pigments and proteins. Now in this figure as you can see here, यहाँ पर देखिए आप इस रीजन में, तो ये जो ब्राउन कलर से यहाँ पर शो किए गए हैं, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, बेसिकली ये ब्राउन कलर से शो किए गए हैं प्रोटीन्स। ये क्या है? बेसिकली प्रोटीन्स। और उसी के साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो उसी के साथ में कि ये जो येलो और ग्रीन कलर में है ये बेसिकली है पिगमेंट्स। सो जो ब्राउन कलर में है वो है प्रोटीन्स, और जो येलो और रेड कलर में है वो है पिगमेंट्स। सो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ LHC, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नाउ ऑन द अदर हैंड, एज यू कैन सी फ्रॉम द टॉप, ये टॉप से ऐसे दिखते हैं। अगर आप ऊपर से देखें तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ऐसे दिखता है, और आप अगर साइड व्यू देखें तो ऐसे दिखता है ना। तो ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है इसमें पिगमेंट्स और प्रोटीन्स दोनों भी है। अगर आपने यहाँ से प्रोटीन्स को हटा दिया तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो टॉप व्यू ऑफ शोइंग क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ओनली। यहाँ पर जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ही अगर छोड़ दिए जाए तो उसका व्यू ऐसे आता है, राइट। तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए येलो प्लस ग्रीन क्लोरोफिल है, राइट, और रेड जो कलर में है वो है कैरोटीनॉइड्स।
राइट। तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में कौन कौन है, उसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन्स, और उसी के साथ में है क्लोरोफिल पिगमेंट्स, और कौन है, कैरोटीनॉइड्स। ओके, नाउ here you can see there is a light harvesting complex LHC। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो एक है रिएक्शन सेंटर, जो मेन रिएक्शन सेंटर है, जहां पर क्या होता है, एक्चुअली क्लोरोफिल अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और वो किसी अपने सबस्ट्रेट को दे देता है। तो ये होते हैं मेन रिएक्शन सेंटर वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेन रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब इसी के साथ में यहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसी को दूसरे शब्दों में एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो आप इनको आप या तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, या आपको अगर कंफ्यूजन अवॉइड करना है तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस छोड़ दें हम, इसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं ये किससे बने होते हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड पिगमेंट्स, नो डाउट। जैसे हमने पहले देखा है कि ये भी किससे बने होते हैं, प्रोटीन्स और पिगमेंट्स से, और ये बहुत अलग अलग रेंज में लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। और फाइनली देखिए यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट है कि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये एनर्जी किसको दे रहे हैं, द एक्साइटेशन ट्रांसफर ब्रिंग्स एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर। मतलब ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम एंटीना कॉम्प्लेक्सेस कह रहे हैं, जो कि किसको एब्सॉर्ब कर रहे हैं, लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं, दे आर अल्टीमेटली गिविंग एनर्जी टू व्हाट, टू द रिएक्शन सेंटर। ये लोग किसको एनर्जी दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को, जहां से क्या कैरी आउट होगा, फोटोसिंथेसिस ना। तो लाइट की हार्वेस्टिंग कैसे होती है ये देखते हैं। ये बहुत ही अच्छे एक डायग्राम है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि लाइट की हार्वेस्टिंग कैसे हो सकती है। तो जो फोटो सिस्टम 2 होता है, फोटो सिस्टम 2, इस फोटो सिस्टम 2 के अंदर इनिशियली लाइट को एब्सॉर्ब करने वाला है क्लोरोफिल बी, फिर उससे क्लोरोफिल बी कितने नैनोमीटर की लाइट को यूज करता है, 450 nm को। फिर उससे लिया जाता है ल्यूटिन लेता है, जियाजेंथिन लेता है, फिर बीटा कैरोटीन लेता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ल्यूटिन है ये 470 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, फिर ल्यूटिन रिलीज करता है 480 नैनोमीटर को, जिसको जियाजेंथिन लेता है। जियाजेंथिन फाइनली उस और लॉन्गर वेवलेंथ को रिलीज करता है, ये है 500 नैनोमीटर की, जिसको बीटा कैरोटीन लेता है। बीटा कैरोटीन से फिर लाइकोपिन, और लाइकोपिन से फिर फाइनली क्लोरोफिल बी लाइट एब्सॉर्ब करता है, राइट। सो ये जो क्लोरोफिल बी है ये लगभग 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्सॉर्ब करता है, राइट। सो इट्स एब्सॉर्ब्स द लाइट ऑफ 650 nm। और फाइनली ये जो क्लोरोफिल बी है ये किसको लाइट दे देता है, ये क्लोरोफिल ए को लाइट देता है, जो कितने अमाउंट में कौन से लाइट को एब्सॉर्ब करता है, इट एब्सॉर्ब्स द लाइट ऑफ 680 nm। और फिर ये जो क्लोरोफिल ए है ये अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है। तो क्लोरोफिल ए के पास इलेक्ट्रॉन आने के लिए और उसको एक्साइट करने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या करे, क्लोरोफिल पहले तो लाइट है वो क्लोरोफिल बी एब्सॉर्ब करे, उससे ल्यूटिन को दे, उससे जियाजेंथिन को दे, उससे कैरोटीन को दे, और कैरोटीन से फिर किसको मिल जाए, ये क्लोरोफिल बी को, और क्लोरोफिल बी से फिर ये मिल जाए क्लोरोफिल ए को, राइट। एंड देन दिस क्लोरोफिल ए इज गोइंग टू गिव लाइट टू द, it is going to give electron to the its substrate, और ये इधर से फोटोलिसिस ऑफ वाटर कर देगा। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा तो हमें पता है कि जब वाटर का फोटोलिसिस होगा तो यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, 2H पॉजिटिव प्लस हाफ ऑफ O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सॉरी 4 नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन
रिलीज होते हैं। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, ठीक है। और फिर से वही एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स किस रेंज में एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, सो लेट्स रिवाइज आवर लेक्चर। हम स्टार्टिंग से रिवाइज करते हैं लेक्चर को कि हु इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। जो सनलाइट है वो टोटल सनलाइट जितना सन एनर्जी रिलीज करता है उसके 40% अर्थ पर आता है। उस 40% अर्थ पर आने वाली जो एनर्जी है उसी को अब हम कंसिडर करते हैं कि अर्थ के ऊपर की जो टोटल सनलाइट से आने वाली एनर्जी है वो है 100%। उसमें से हमने 1% किसके लिए यूज़ किया, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्चुअली वो लाइट है जो कहाँ पर आकर इंसिडेंट होता है, आपके जो प्लांट्स है उसके ग्रीन पोर्शन पर जो लाइट आकर इंसिडेंट होता है उसी से हम कह सकते हैं कि ये 1% लाइट है, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने देखा है कि जो क्लोरोफिल होते हैं ये लगभग 450 और 650 नैनोमीटर के रेंज में एब्सॉर्ब करते हैं लाइट को। फाइनली हमने क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर देखे कि अगर लाइट को रिसीव करना है तो लाइट को रिसीव करने के लिए कोई एक पिगमेंट होगा जो लाइट को रिसीव करता है। तो वो पिगमेंट कौन सा है, वो है क्लोरोफिल, जो मेनली लाइट को एब्सॉर्ब करता है। क्लोरोफिल के अंदर पोरफायरिन रिंग होती है और सेंटर में Mg डाइपॉजिटिव आयन होता है, राइट। फिर अलग अलग फॉर्म के क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी एंड क्लोरोफिल डी। ओके, तो अब फिर हमने देखे कि नेसेसरी पिगमेंट्स कौन से, जो पिगमेंट्स और लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, तो वो है कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। कैरोटीनॉइड्स जो है ये रेड और ऑरेंज कलर को एब्सॉर्ब करते हैं। ओके, ये फैट सोल्यूबल है, 40 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसको C40 टर्पिन कहा जाता है क्योंकि ये टर्पिन क्लास से बिलोंग करते हैं बेसिकली। इसकी 2 टाइप्स होती है, वन इज ज़ांथोफिल एंड अदर इज कैरोटीन। ज़ांथोफिल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और कैरोटीन में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। इसका एक वेल नोन एग्जांपल है बीटा कैरोटीन। कैरोटीनॉइड्स फोटो प्रोटेक्शन में काम करते हैं, मतलब जो प्लांट को हाई लाइट इंटेंसिटी की वजह से डैमेज होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कैरोटीनॉइड्स। ऑन द अदर हैंड जो दूसरे एसेसरी पिगमेंट्स हैं वो है फाइकोबिलिन्स, राइट। तो ये जो फाइकोबिलिन्स हैं ये बिलिन पिगमेंट्स होते हैं विच आर प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड दे आर कॉल्ड एज फाइकोबिलिन्स। तो ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होते हैं। दीज पिगमेंट्स दे आर वाटर सोल्यूबल। दीज पिगमेंट्स are combined with protein and together they form phycobiliproteins, okay, and they give red, orange and green color to the plants. Now फिर हमने देखा कि जो लाइट है वो एब्सॉर्ब करने के बाद वो लाइट का जो एनर्जी है वो किसको दिया गया, वो एनर्जी कहाँ पर गया। तो लाइट की एनर्जी एक तो जा सकती है हीट के फॉर्म में, वो रिलीज हो सकती है। दूसरा जो लाइट एनर्जी है वो फ्लोरेसेंस लाइट के फॉर्म में रिलीज की जा सकती है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तीसरा है एक्साइटेशन ट्रांसफर के द्वारा। एक्साइटेशन ट्रांसफर मीन्स ये जो क्लोरोफिल है ये किसी को एनर्जी दे दे अपने सामने और जहां से फिर आगे क्या कैरी आउट होगा, फोटोसिंथेसिस। तो अगर क्लोरोफिल एक्साइटेशन ट्रांसफर के द्वारा किसी को अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो ही फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होगा। और फाइनली जो वे है वो है फोटो ऑक्सीडेशन, राइट। फिर हमने देखा कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। बेसिकली लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस ये पिगमेंट और प्रोटीन के बने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं, विच बेसिकली एब्सॉर्ब्स लाइट। ओके, सो दे आर मेड अप ऑफ पिगमेंट्स एंड प्रोटीन्स। पिगमेंट्स कौन से, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, राइट। और इसमें अलग अलग तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। सो ये प्रोटीन और पिगमेंट मिलाकर क्या बनाते हैं, दे फॉर्म लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये येलो कलर से आपके येलो और ग्रीन कलर मिलाकर क्लोरोफिल शो किए गए और रेड कलर से कैरोटीनॉइड शो किए गए ना। ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये सारे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस सेंटर में किसी रिएक्शन सेंटर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उस रिएक्शन सेंटर में होता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो इसको हम मेन रिएक्शन सेंटर बोल सकते हैं। और ये जो बाकी के हैं ये सारे जो है इसको हम कह सकते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स, या इसको हम LHC कह सकते हैं। सो देयर इज रिएक्शन सेंटर एंड देयर आर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में फिर से क्या होते हैं, इसमें फिर से पिगमेंट्स होते हैं और इसमें मेनली कौन से पिगमेंट होते हैं,
तो इसमें होते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें होते हैं क्लोरोफिल और साथ ही साथ कुछ कैरोटीनॉइड्स। तो क्लोरोफिल जो है वो रिएक्शन सेंटर में भी प्रेजेंट है और यही क्लोरोफिल बाद में जो आपके एंटीना कॉम्प्लेक्सेस हैं उसमें भी प्रेजेंट है अलोंग विद द कैरोटीनॉइड्स। हाँ, क्लोरोफिल की फॉर्म अलग अलग होती है। जो क्लोरोफिल होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो अलग तरीके का होता है, वो अलग तरीके के प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, और जो रिएक्शन सेंटर में होता है वो अलग तरीके का होता है और अलग तरीके के प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान दें कि जो आपके LHC है प्लस रिएक्शन सेंटर, ये दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं, फोटोसिस्टम। तो ये दोनों किसका हिस्सा होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम, ओके। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर दो फोटो सिस्टम है, ये फोटो सिस्टम 2 और ये फोटो सिस्टम 1। इसकी लोकेशन क्या है फोटो सिस्टम 1 और 2 की, फोटो सिस्टम 1 कहाँ पर होती है, 1 और 2 बेसिकली कहाँ पर होते हैं, तो ये किसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। ये ध्यान दे, अभी तक हमने जितने भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस देखे हैं, जितने भी रिएक्शन सेंटर्स देखे हैं, जितने भी पिगमेंट्स देखे हैं, दे ऑल पिगमेंट्स आर मोस्टली प्रेजेंट इन दिस मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। तो ये ध्यान दे कि ये सारे की लोकेशन कहाँ पर होती है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, ओके। सो दिस इज the structure of photosystem, the composition of photosystem 2 and photosystem 1। photosystem 2 के अंदर क्या होता है और photosystem 1 के अंदर क्या होता है, ध्यान दे। so what is there in the photosystem 2, इसके अंदर एक होता है, there is a main tyrosine residue present at Y position, that is Y stands for tyrosine on 161th position of D1 protein। तो इसके अंदर एक D1 प्रोटीन होता है फोटोसिस्टम 2 में, और ये जो D1 प्रोटीन है, इस D1 प्रोटीन के अंदर यहाँ पर 161 पोजीशन पर कौन सा अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन नाम का, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना कोई काम का नहीं है, पर ये ध्यान दे कि ये जो फोटोसिस्टम का D प्रोटीन होता है, इट इज हीट सेंसिटिव प्रोटीन, मीन्स if the light intensity increases, it will be, this protein will be degraded। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो ये जो प्रोटीन है ये क्या हो जाता है, ये प्रोटीन डिग्रेड हो जाता है। इसके बाद में इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स क्लोरोफिल ए डाइमर, मतलब दो क्लोरोफिल एक साथ अटैच्ड है तो उसको हम कहते हैं डाइमर। तो ये जो फोटोसिस्टम 2 है इसके अंदर एक क्लोरोफिल का डाइमर प्रेजेंट होता है, इसी में फियोफाइटिन नाम का एक मॉलिक्यूल होता है, फियोफाइटिन ए बेसिकली, और इसी के अंदर प्लास्टोक्यूनोन्स होते हैं, इसी के अंदर फिर से क्या होते हैं, प्लास्टोक्यूनोन्स, ओके। एंड नेक्स्ट टू दिस द फोटोसिस्टम 1, इसके अंदर प्लास्टोसाइनिन होता है, राइट, it contains plastocyanin or a C type of cytochrome is present in the photosystem 1। then it contains a chlorophyll dimer, again it contains a chlorophyll dimer। photosystem 1 में भी एक chlorophyll dimer होता है, पर ये जो photosystem 2 है इसका chlorophyll dimer किसी अलग तरीके के प्रोटीन से एसोसिएट होता है, it is attached to some different kind of protein, right। और ये जो chlorophyll A का डायमर है ये फोटोसिस्टम 1 में किसी अलग तरीके के प्रोटीन से अटैच होता है, ओके। सो ये ध्यान रखें कि ये जो क्लोरोफिल ए है, ये क्लोरोफिल ए किससे अटैच्ड होते हैं, प्रोटीन से। तो फोटोसिस्टम 1 का प्रोटीन अलग है और फोटोसिस्टम 2 का प्रोटीन अलग है। वी नो दैट फोटोसिस्टम 1 एब्सॉर्ब्स लाइट ऑफ विच वेवलेंथ, 700 nm, और फोटोसिस्टम 2 कितने nm का लाइट एब्सॉर्ब करती है, 680 nm, ओके। और इसमें क्या होता है फिर, इसमें होता है क्लोरोफिल ए
फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन ध्यान रखें कि फाइलोक्विनोन इज बेसिकली विटामिन के, राइट। फाइलोक्विनोन इज बेसिकली विटामिन के। ये क्या होता है विटामिन के? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विटामिन के इन आवर बॉडी? इज ब्लड क्लॉटिंग। What is the function of vitamin K in our body? Is blood clotting. विटामिन के अगर ना हो तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होती, विटामिन के की वजह से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होती। और इस फोटो सिस्टम का ही एक हिस्सा है, और ये कौन सा है? इट कंटेन्स आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स, FeS क्लस्टर। सो दिस इज ऑल अबाउट द मशीनरी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द photosynthesis. Thank you. So if you are having any doubts, you can message me on my personal number and I will solve your all the doubts.